So in this session, we will start with the ERP packets. In the last session, we have discussed about the ICMP, the difference in the delta time displayed, delta time captured, and second since first captured packet. And also we have analyzed the ICMP packet loss, the ICMP packet delays, how we can analyze the ICMP errors, the ICMP types and codes. In this session, we will start with the ERP. So ARP stands for the Address Resolution Protocol, and it is mainly responsible for finding the hardware address from a known IP address. So we have two types of ARP. One is simple ARP and second is reverse ARP. So in the ARP, in the simple ARP, we are finding the like hardware address from a known IP address. But in the reverse ARP, we are finding the IP address from giving the hardware address. But reverse ARP is replaced by the DSCP and BootTP protocols. So in the ARP, we have some ARP cache, which we can check out from the CMD. We have ARP request and ARP response. These are important for analyzing the ARP traffic. So ARP request, it is like, it contains four types of information which are important for us. First is physical address of the sender, the IP address of the sender, and the physical address of the receiver and the IP address of the receiver. Now, the physical address of the receiver is unknown. Okay. And ARP response contains the MAC address which the sender is looking for. Okay, so let's analyze the ARP traffic. First, we analyze the simple ARP, then we will analyze the reverse ARP, then we will analyze the problems with the ARP, like mainly the ARP spoofing problems. Some Okay, so सबसे पहले we will start analyzing the ARP traffic. So, do we have Okay, तो ये है सबसे पहले ERP. Okay, ERP का traffic. So we can start analyzing. So we have the source here. We have the source here, and then we have this destination. Now, destination is always the broadcast. Okay, so let's analyze this traffic. इसमें we have this ERP. Okay, इसमें it is like a hardware type Ethernet one. Then protocol is IPv4, hardware size, protocol size. What is important for us? This opcode. Opcode ये बता रहा है कि जो पैकेट है वो रिक्वेस्ट है या रिस्पॉन्स है. Secondly, here we have this information, the same information which we can see find here in the nodes. So इसमें we have four types of information like sender MAC address. Okay, so ये sender का MAC address, then sender का IP. Now sender का IP is 00 because it is like a broadcast packet. Then target का MAC address because it is also unknown because target is looking for someone's MAC address. Okay, sorry, the sender is looking for someone's MAC address. And then target का IP address. So वैसे तो ये broadcast packet है and ERP तो आपको पता ही होगा. It is like it is looking for the MAC address. ओके, तो इसने सोर्स ने सबसे पहले पैकेट को ब्रॉडकास्ट किया एंड द एआरपी दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस व्हिच इज सोर्स इट इज लुकिंग फॉर द आईपी sorry the MAC address of this particular IP address. Okay, you can see who has 169.254.215 ARP pro. So ARP request है ये एंड ये कह रहा है कि
169.254.215 कौन से मैक एड्रेस पर है. ओके, सो इट इज अ ब्रॉडकास्ट पैकेट. एंड देन here we have received the response from this particular source. अब इसमें सोर्स जो है वो हमारा राउटर है. ओके, लाइक सेंडर जो है वो राउटर है. सो सेंडर का मैक एड्रेस आ गया विच इज राउटर का मैक एड्रेस. सेंडर का आईपी विच इज राउटर का आईपी आ गया. टारगेट मैक एड्रेस एंड टारगेट आईपी एड्रेस. ओके, सो इवन the router is asking, router is also asking about this IP address, like who has this IP address, tel 192.168. So we are searching for this IP address, okay, and tel this one. So अगर रिस्पॉन्स जाता है तो इस आईपी पे जाएगा रिस्पॉन्स, बिकॉज राउटर यहाँ पर सर्च करा है कि ये जो पर्टिकुलर आईपी है ये कौन से मैक एड्रेस पर है. ओके, एंड देन कभी कभी राउटर यूज करता है एआरपी मेनली फॉर स्टोरिंग द एड्रेस. मेनली जो लाइक राउटर कभी भी अगर एआरपी के पैकेट्स शेयर कर रहा है तो वो पता कर रहा है कि कौन सी पर्टिकुलर आईपी कौन से एड्रेस पर है, एंड उसको उस आईपी को और मैक एड्रेस को उसकी करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस को स्टोर करने के लिए. एंड देन वी हैव दिस डिवाइस. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रिक्वेस्ट. नाउ हियर वी हैव दिस रिस्पॉन्स. इन दिस रिस्पॉन्स the sender MAC address and sender IP is the router. So router response कर रहा है to this particular host, या फिर we can say this particular host. और उसका target MAC address ये है, target IP ये है. Okay, so basically 192.168.0.1 is at this IP address. So we are searching. So ये जो router है, किसी को I think किसी ने राउटर की IP सर्च करी होगी. या देखिए, इस डिवाइस ने पैकेट नंबर 5, इस डिवाइस ने राउटर की आईपी सर्च करी थी कि राउटर का मैक एड्रेस सर्च किया था कि राउटर का मैक एड्रेस क्या है, इस आईपी को बताइए विच इज 192.168.0.105. ओके, तो पैकेट नंबर 6 में उसी का ही रिस्पॉन्स आया है. राउटर ने रिस्पॉन्स भेजा 192.168.105 को और ये बताया कि मैं इस मैक एड्रेस पर हूँ. ओके, ये तो सिंपल एआरपी का फ्लो है, इसमें कुछ न्यू नहीं है. देन we have again other request, like यही चलता रहेगा. Like we have this broadcast packets, like two types of packets, the response and request. Request में होगा कि we are searching for any particular MAC address और response में होगा उसी का MAC address. ओके, अगर राउटर ने पूछा है किसी आईपी का MAC address, तो जो आईपी होगी जिसको पूछा है तो वो रिस्पॉन्स करेगी राउटर को कि मैं इस MAC address पर हूँ. ओके, सो ये तो सिंपल फ्लो हो गया ईआरपी का. लेट्स चेक any other package. So we can also apply the request and response filters. For example, इस पैकेट में we have this opco request. इसको राइट क्लिक करते हैं एंड वी कैन अप्लाई दिस एज फिल्टर. वी कैन चेक आउट कि कितने रिक्वेस्ट पैकेट है पूरे वायरशार्क के ट्रैफिक में. सो वी हैव अराउंड 15 रिक्वेस्ट पैकेट्स. ओके, वी हैव अराउंड 15 रिक्वेस्ट पैकेट्स. एंड हु हैज नाउ किस किस के बारे में पूछा जा रहा है, इन सब आईपीस के बारे में कि ये सब आईपी एड्रेस कौन से मैक एड्रेस पर है, विच इज 169.254, 169 अगेन 254, 192.168.0.105 एंड सो ऑन. सो इन सब के बारे में पूछा जा रहा है. एंड देन वी कैन चेक आउट फॉर द रिस्पॉन्स कि वी कैन चेक आउट फॉर द रिस्पॉन्स. इसको राइट क्लिक करते हैं एंड वी कैन अप्लाई दिस एज फिल्टर. तो ये सारे रिस्पॉन्स निकल कर है विच इज 6 रिस्पॉन्स. एंड इफ वी नोटिस तो सारे रिस्पॉन्स राउटर ही दे रहा है और किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो सारे रिस्पॉन्स राउटर दे रहा है. ओके, टू द सेम होस्ट. ये सारे रिस्पॉन्स है राउटर के, राउटर दे रहा है इस पर्टिकुलर होस्ट को कि मैं इस मैक एड्रेस पर हूँ. सो नाउ वी नो द मैक एड्रेस ऑफ दिस राउटर. सो अब क्या होगा, ये जो मशीन होगी, ये जो होस्ट होगा, अपनी जो एआरपी टेबल है उसको अपडेट कर लेगा और अपने टेबल में राउटर का मैक एड्रेस और उसका राउटर का आईपी एड्रेस और उसका करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस नोट कर लेगा. ओके, सो ये तो सिंपल फ्लो हो गया यार. व्हाट वी कैन एनालाइज इज द रिवर्स एआरपी. अब रिवर्स एआरपी इसका अपोजिट होता है. इन द रिवर्स एआरपी वी आर लुकिंग फॉर द आईपी एड्रेस. ओके, लाइक मैक एड्रेस है बट आईपी एड्रेस नहीं पता. अभी तो ऐसा होता नहीं है, मतलब अभी के अभी अभी वी हैव दिस न्यूली अपडेटेड प्रोटोकॉल विच इज डीएससीपी और बूट टीपी. इसकी हेल्प से आईपी हम लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ डिवाइस
अभी कोई डिवाइस कनेक्ट हुआ नेटवर्क में, लाइक न्यूली डिवाइस है या फिर कोई ओल्ड डिवाइस है, अब कोई भी जब डिवाइस कनेक्ट होता है नेटवर्क के अंदर, उसको आईपी एड्रेस चाहिए होती है। तो वो आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है? वो करता है डीएचसीपी का प्रोटोकॉल। ओके। सो बट पहले क्या था, पहले रिवर्स एआरपी भी यूज होता था। सो आई होप यू नो दिस वन ऑल्सो। सो वी हैव दिस सोर्स एड्रेस। ओके, इसमें बस दो ही पैकेट है, इसमें बस टू पैकेट्स है, विच इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब ये रिवर्स एआरपी कौन यूज करेगा, पहले इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले सोर्स में देखिए क्या है। सोर्स में वी हैव दिस वन, दिस इज सेम इंफॉर्मेशन ना। ऑप कोड 4 हो गया। ओके, सो ऑप कोड 3 हो गया, विच इज रिवर्स रिक्वेस्ट है ये। 1 फॉर द सिंपल एआरपी की रिक्वेस्ट थी, 2 ऑप कोड था हमारा रिप्लाई के लिए, 3 ऑप कोड है रिवर्स रिक्वेस्ट के लिए, 4th ऑप कोड है रिवर्स रिप्लाई के लिए। तो उसमें सेंडर का मैक एड्रेस दे रखा है कि ये सेंडर है। अब उसका आईपी नहीं है, देखिए उसका आईपी नहीं दे रखा। और टारगेट का मैक एड्रेस है। अगर आप नोटिस करेंगे, सेंडर का मैक एड्रेस और टारगेट का मैक एड्रेस दोनों ही सेम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सेंडर खुद कह रहा है कि मैं इस मैक एड्रेस पर कौन सी आईपी है। बिकॉज ये जो सेंडर है वो अपनी आईपी पता लगाना चाहता है कि मैं कौन सी आईपी पर। कभी कभी आपने देखा होगा, लाइक कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, ऐसे काफी डिवाइसेस होते हैं, लेट्स से सर्किट्स होते हैं। मैंने सर्किट्स देखे मेनली, जो लेट्स से आपने उनको नेटवर्क पे कनेक्ट किया। अब सर्किट्स के अंदर इतनी मेमोरी नहीं होती है कि वो एक एआरपी की कैश टेबल स्टोर कर ले। तो इसलिए क्या होता है कि वो जब भी कनेक्ट करते हैं और जब भी लाइक कोई ऑपरेशन करते हैं, वो हमेशा अपनी आईपी मंगवाते हैं फ्रॉम द राउटर, या फिर जो भी आईपी प्रोवाइड कर रहा है, जो भी सर्वर प्रोवाइड कर रहा है आईपी। तो इस केस में या तो सर्किट्स हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा डिवाइस हो सकता है जिसके पास खुद की एआरपी कैश टेबल नहीं हो। इसलिए वो लाइक ऑन द बेसिस ऑफ द आईपी एड्रेस वो अपना, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ द मैक एड्रेस वो अपना आईपी एड्रेस मंगवाता है। ओके, तो ये रिवर्स एआरपी है। सिंपल एआरपी में वी आस्क फॉर द मैक एड्रेस, रिवर्स एआरपी में वी आस्क फॉर द आईपी एड्रेस। तो अब ऑफ कोर्स की बात है कि वेन एवर गेट दिस सेंडर मैक एड्रेस एंड गेट दिस टारगेट मैक एड्रेस, जो सेंडर है वो खुद की ही आईपी मंगा रहा है, इसलिए टारगेट में भी उसी का ही मैक एड्रेस है। जिस सेंडर इज सेइंग दैट आई एम एट दिस मैक एड्रेस एंड मेरी आईपी मुझे पता नहीं है, विच इज सेंडर आईपी इज अननोन। इवन टारगेट आईपी अननोन होगी बिकॉज ये ब्रॉडकास्ट पैकेट है। एंड टारगेट मैक एड्रेस इज, वी हैव दिस वन। तो सेंडर इज सेइंग दैट आई एम एट दिस मैक एड्रेस और मुझे अपना ही मैक एड्रेस की आईपी चाहिए, तो इसलिए टारगेट के मैक एड्रेस में भी इसी की आईपी, सॉरी, इसी का ही मैक एड्रेस है। ओके, एंड यू कैन सी द इंफॉर्मेशन ऑल्सो दैट हु इज हु इज दिस वन, टेल दिस वन, मतलब कि हु इज दिस पर्टिकुलर मैक एड्रेस, ये इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस पे कौन सी आईपी है और इसी मैक एड्रेस को बताना है। ओके, मतलब कि ये डिवाइस खुद ही की आईपी फाइंड कर रहा है। देन वी हैव रिसीव्ड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ सर्वर। अब ये सर्वर अलग है और ये तो हमारा होस्ट है जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी, ये हमारा रिप्लाई करने वाला है। अब इसने बताया, इस पर्टिकुलर डिवाइस ने बताया कि ये जो मैक एड्रेस है ये इस एड्रेस पर है। अगर हम लोग इसको एनालाइज करें, शायद ये राउटर की ही आईपी है, सेकंड जो डिवाइस है। नहीं नहीं, राउटर नहीं है। ओके, अब देखिए सेंडर मैक एड्रेस कौन सा हो गया। अब सेंडर मैक एड्रेस इज डिफरेंट। पहले जो हमारा रिसीवर मैक एड्रेस था वो था दिस वन। अब जो सेंडर मैक एड्रेस है जो रिप्लाई कर रहा है वो डिफरेंट है, क्योंकि अब कोई और डिवाइस रिप्लाई कर रहा है। और सेंडर आईपी ये आ गया हमारा, विच इज द सेंडर आईपी। देन द टारगेट मैक एड्रेस दिस वन, बिकॉज ये जो होस्ट है इस पर्टिकुलर टारगेट को मैसेज कर रहा है एंड ये बता रहा है कि जो टारगेट की आईपी एड्रेस है ये है, विच इज 101110 की आईपी ये है और उसका मैक एड्रेस ये है। मतलब कि इंफॉर्मेशन ओवरऑल मिली गई है, और ये इन्फॉर्मेशन किसी और सर्वर से आ रही है जिसके पास हमारी इन्फॉर्मेशन है, लाइक उस डिवाइस की होस्ट की इन्फॉर्मेशन है। मे बी उसके पास खुद की एआरपी कैश टेबल हो सकती है, या फिर वी कैन से ये कोई मैनुअली भी कर सकता है। ओके, इट डिपेंड्स। बट ओवरऑल वी रिसीव द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सोर्स। ओके, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस विच इज 101110 से हमें रिस्पॉन्स मिल गया। और ये बता रहा है कि जो पर्टिकुलर मैक एड्रेस है इट इज एट 101100 इस आईपी पर। ओके, सो ईआरपी, रिवर्स ईआरपी इज रिवर्स। अब मेनली वी यूज डीएससीपी या फिर बूटीपी यूज होता है। रिवर्स ईआरपी काफी कम सिनेरियोस में यूज होता है। सो ओवरऑल वी कैन कंक्लूड, लाइक इन द
Simple ARP, we are looking for the MAC address. In the reverse ARP, we are looking for the IP address. इतना क्लियर है? कोई क्वेश्चन? नो मैडम। अब एक कंसर्न है इसमें, सो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक एआरपी स्पूफ नेम का अटैक होता है। हम्म। एआरपी स्पूफ आप जानते ही होगे। हाँ जी। ओके, तो एआरपी स्पूफ को कैसे आइडेंटिफाई करना है एक बार मैं बता देती हूँ। एआरपी स्पूफ इज लाइक whenever there's a अटैकर आपके राउटर की आईपी या फिर किसी और डिवाइस की आईपी को वो क्लोन कर रहा है, सॉरी नॉट आईपी, हार्डवेयर एड्रेस को। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव, इट इज लाइक अ, या तो हम कह सकते हैं कि एक मैन इन द मिडिल अटैक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इज अटैकर, अटैकर कह लो या फिर कोई भी होस्ट कह लो। और वी हैव दिस वन, लेट्स से राउटर। अभी राउटर जब, लेट्स टेक अ सिनेरियो, वी हैव अ सिंपल विंडोज। सो पहले जो विंडोज ने रिक्वेस्ट करी एआरपी रिक्वेस्ट को, और विंडोज ने राउटर की आईपी, राउटर का मैक एड्रेस मंगवाया। मीन्स विंडोज ने क्या पूछा होगा कि हु इज एट आईपी एड्रेस 192.168.1.1, ओके, टेल दिस विंडोज की आईपी। तो विंडोज ने राउटर का मैक एड्रेस मंगवाया तो राउटर ने प्रोवाइड कर दिया। बट थोड़ी देर बाद क्या हुआ, देर से अटैकर अटैकर आया और अटैकर ने राउटर की जो मैक एड्रेस है उसको स्पूफ कर लिया। ओके, मतलब चेंज कर दिया या तो, या फिर स्पूफ कर लिया, विच मीन्स, सॉरी, राउटर की आईपी को स्पूफ कर लिया। सो राउटर की आईपी क्या थी, 192.168.1.1, और वही आईपी अटैकर ने स्पूफ कर ली, विच इज 192, ये दिस 192.168.1.1। अब इसमें क्या होगा, अगर कोई भी डिवाइस, कोई भी विंडोज या फिर कोई भी डिवाइस फिर से राउटर के हार्डवेयर एड्रेस को मंगवाएगा, तो बेसिकली रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, अटैकर के पास, क्योंकि अटैकर ने टेक्निकली राउटर की आईपी को स्पूफ कर लिया है। तो अब जो मैक एड्रेस आएगा वो चेंज हो जाएगा। पहले राउटर का मैक एड्रेस कुछ और था जो ओरिजिनल था, बट अटैकर आया, उसने राउटर की आईपी को स्पूफ किया, और अब राउटर का तो अटैकर की डिवाइस का मैक एड्रेस डिफरेंट होगा। तो इसलिए जो आईपी होगी, इस आईपी का जो मैक एड्रेस होगा वो चेंज हो जाएगा। और इसी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि देयर इज अ एआरपी स्पूफिंग अटैक और नॉट। ओके, फॉर एग्जांपल लाइव से थोड़ा अच्छे से समझ आए, इसमें इस पूरी ट्रैफिक में अराउंड 16,000 पैकेट्स हैं, और काफी पैकेट्स हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि कितने पैकेट्स हैं, कौन से टाइप के, यूजिंग प्रोटोकॉल हायरार्की, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा एक बार। तो इसमें IPv6 के पैकेट है, एक ही फिजिकल इंटरफेस यूज हो रहा है, विच इज इथरनेट, और कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं है। देन वी हैव दिस IPv6, IPv4, ओके, और यूडीपी के भी पैकेट्स है, TCP के भी पैकेट्स है। इन द IPv6 वी हैव सम पैकेट्स ऑफ यूडीपी, DSCP एंड सम अदर ICMP के। और IPv4 में भी यूडीपी के हैं, TCP के हैं, HTTP के हैं। ERP के हैं पैकेट्स विच इज 50 पैकेट्स। सो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन अप्लाई अ सिंपल फिल्टर। यार पहले ERP का ही सिंपल एनालाइज करते हैं। अब क्या है इसमें कि वी हैव दिस राउटर एंड वी हैव दिस ब्रॉडकास्ट। सो हु हैज दिस आईपी, टेल दिस आईपी। सो ये तो राउटर ही पूछ रहा है कि इस आईपी पर कौन सा डिवाइस है, और राउटर को ही बताओ। हु हैज दिस आईपी, टेल दिस आईपी, ओके, दिस आईपी एंड टेल दिस आईपी, एंड सो ऑन। सो व्हाट वी हैव टू लुक फॉर, वी हैव टू मेनली लुक फॉर द राउटर आईपी। एक काम करते हैं, पहले एक दो रिस्पॉन्स देखते हैं। देखिए एक ये रिस्पॉन्स आया है फ्रॉम द राउटर साइड कि 192.168.1.1 इज एट दिस मैक एड्रेस, ओके, एक ये रिस्पॉन्स है। अभी तो एक पहला रिस्पॉन्स यही आया है विच इज 192.168.1.1 इज एट दिस मैक एड्रेस। सो वी कैन एक्सपेंड। सो ये है राउटर का मैक एड्रेस विच इज दिस वन। ये आ गया राउटर का मैक एड्रेस, जो ओरिजिनल मैक एड्रेस है। और अभी पता नहीं ओरिजिनल है या नहीं है, सो वी कैन राइट क्लिक, इसको कॉपी कर देते हैं। अ, इसको कॉपी करके एक जगह पेस्ट कर लेते हैं, जो जिसकी हेल्प से हम लाइक एक फिल्टर अप्लाई कर पाएंगे। सो ये आ गया राउटर का, राउटर की आईपी। देन वी हैव दिस अनदर आईपी विच इज अनदर रिस्पॉन्स। एक और रिस्पॉन्स आया फ्रॉम द राउटर साइड दैट 192.168.1.1 इज एट दिस पर्टिकुलर आईपी। अभी भी ये वही मैक एड्रेस है, एंड रिस्पॉन्स मेनली राउटर की साइड से ही आ रहा है कि मैं इस मैक एड्रेस पर हूँ। अगेन सेम रिस्पॉन्स, अगेन सेम रिस्पॉन्स। सो एक बार सारे रिस्पॉन्स एनालाइज कर लेते हैं।
ओके, सो वी कैन राइट क्लिक और इसको एज अ फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारे रिस्पॉन्सेज आ गए। ओके, तो सोर्स का रिस्पॉन्स आ गया, डेस्टिनेशन सॉरी ये सारे रिस्पॉन्सेज हैं, और ये राउटर ने शेयर किए हैं। ये फर्स्ट 4 और 5 पैकेट्स राउटर के, विच इज राउटर एट दिस आईपी एड्रेस। Then we have received response from another device which is 104 at this one. So एक और response आया which is okay, ये भी होगा कोई डिवाइस। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अगर आप इसमें नोटिस करेंगे कि फर्स्ट के जो 5 पैकेट्स हैं उनका मैक एड्रेस कुछ और है राउटर का, और जो थर्ड पैकेट है, ये जो 3 पैकेट्स है, इनका मैक एड्रेस कुछ और है राउटर का ही। वी हैव दिस वन 275301 7C एंड 272D F858। तो ये मैक एड्रेस यहाँ पर चेंज हो रहा है। पहले राउटर कह रहा था कि मेरा मैक एड्रेस ये है, अब वही राउटर कह रहा है कि मेरा एड्रेस कुछ और हो गया। ओके, तो वी कैन स्क्रॉल, देखते हैं कि और देखिए एक और डिवाइस है यहाँ पर विच इज 192.168.105 इज एट दिस मैक एड्रेस। मतलब कि राउटर का मैक एड्रेस भी यही है, और जो राउटर का दूसरा मैक एड्रेस जो चेंज हुआ है वो ये है। एंड एक और डिवाइस है विच इज 192.168.105, उसका भी मैक एड्रेस सेम है जो राउटर का है, या एग्जैक्टली सेम है। एंड देन वी हैव अगेन सम डिवाइसेस, ये सारे राउटर के पैकेट्स है, इसका मैक एड्रेस चेंज है। ओके, एंड देन अगेन चेंज हो गया मैक एड्रेस, देखिए। सो इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पहले राउटर का मैक एड्रेस कुछ और था, अब कुछ और हो गया। तो एक काम करते हैं, एक वी हैव वन फिल्टर, मैंने नोट कर रखा है। ये एआरपी स्पूफ का एक काफी अच्छा फिल्टर है। अगर आप इस फिल्टर को अप्लाई करेंगे तो ये बताएगा कि आपके नेटवर्क में एआरपी स्पूफिंग अटैक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब ये फिल्टर क्या है, सबसे पहले वी आर चेकिंग फॉर द आईपी एड्रेस। इस आईपी एड्रेस पर पूरा फिल्टर हो जाएगा। सेकेंडली, एंड परसेंट यूज करें, एंड परसेंट मतलब कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये वाली भी एंड दिस वन। एंड सेकेंड कंडीशन ये है कि ऑपकोड जो है वो 2 होना चाहिए, मतलब कि सारे रिप्लाई पैकेट शो होंगे एंड इस आईपी के शो होंगे, विच इज 192.168.111। एम परसेंट, फिर से एम परसेंट यूज हो रहा है, अब इसमें नॉट का साइन है। अब ये कह रहा है कि जो एआरपी का सोर्स एड्रेस होगा, सोर्स हार्डवेयर एड्रेस होगा, वो ये नहीं होना चाहिए। ओके, मीन्स पहले तो ये कंडीशन चेक होगी, इतनी कंडीशन, क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर है। इस कंडीशन में ये है कि पहले फिल्टर होंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस आईपी एड्रेस विच इज 192.168.111, एंड देन इट इज फिल्टरिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लाई पैकेट्स। अब सारे एआरपी के रिप्लाई पैकेट्स ही शो हो रहे हैं। एम परसेंट, ये तो एक कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए बिकॉज एम परसेंट यूज कर रहे हैं हम। देन फिर से हम लोग एम परसेंट यूज कर रहे हैं, एंड इस बार हम लोग ये कह रहे हैं कि जो भी आप पैकेट्स शो होने वाले हैं उसमें ये मैक एड्रेस नहीं होना चाहिए, ये ओरिजिनल मैक एड्रेस है। ओके, लेट मी शो यू, मैं इसको अप्लाई करती हूँ। सो देखिए अभी जो ओरिजिनल मैक एड्रेस है राउटर का वो है 7C, लास्ट में 7C है। तो अभी मैं इसको अप्लाई करती हूँ। अब देखिए इसमें जो ओरिजिनल मैक एड्रेस है वो शो नहीं होगा, और सारे मैक एड्रेस शो हो जाएंगे जो 192.168.111 डिस्प्ले कर रहा है। एंड अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पहले तो ये सारे रिप्लाई के पैकेट्स है, एआरपी के रिप्लाई। सेकेंडली ये सारे जो रिप्लाई पैकेट्स आ रहे हैं वो सारे 192.168.111 से आ रहे हैं, मतलब राउटर से आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सोर्स यूज किया है, सोर्स और ये आईपी एड्रेस। देन मैंने यूज किया है एआरपी के पैकेट, सारी रिप्लाई पैकेट्स है। सेकेंडली आई एम जस्ट सेइंग दैट इस मैक एड्रेस के जो पैकेट है वो शो नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ये जो मैक एड्रेस है उसके नहीं शो, और सारे मैक एड्रेस के शो है। इसका मतलब वी आर आइडेंटिफाइंग द एआरपी स्पूफ अटैक। अगर ओरिजिनल मैक एड्रेस होगा तो वो शो हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल और कौन कौन से मैक एड्रेसेस हैं जो ये आईपी क्लेम कर रहा है कि ये मेरे मैक एड्रेस है, तो वो सारे शो हो जाएंगे। तो देखिए एक ये मैक एड्रेस है जो फेक है, ओके, एक ये मैक एड्रेस है ये भी फेक है। तो मतलब इसमें आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपके राउटर का ओरिजिनल हार्डवेयर एड्रेस क्या था। और वो कैसे पता चलेगा, इसको अगर मैं रिमूव करूं एंड वी हैव दिस एआरपी, तो वो तो सिंपल आपको पता चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट पैकेट में क्या है, सबसे पहले जो पैकेट में डिस्प्ले हो रहा है वो यही मैक एड्रेस है, जो 0800275C0117C, ये डिस्प्ले हो रहा है। हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट करी हो
तब अटैक चल रहा हो। ऐसा भी हो सकता है, इसका मतलब कि जो पहले आईपी शो हो रही है, सॉरी, जो पहले मैक एड्रेस शो हो रहा है वो फेक हो, और जो बाद में मैक एड्रेस आ रहा है दूसरा वाला वो ओरिजिनल हो। सो ये तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा फेक है कौन सा ओरिजिनल है। बट हाँ, एक और ट्रिक है इसमें। सो लेट्स से अभी हम ये अज्यूम करते हैं कि जो पहला वाला मैक एड्रेस है राउटर का, विच इज दिस वन, ये ओरिजिनल वाला है। ओके, अगर हमें ओरिजिनल वाला पता है तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि फेक वाला कौन सा होगा। हमने फिल्टर अप्लाई किया फिर से। ओके, अब देखिए इसमें जो फिल्टर है इसमें आपको अपना मैक एड्रेस रिप्लेस करना है। अब आपको पता है कि आपका ओरिजिनल वाला कौन सा है, तो आपको वो पैकेट्स देखने जिसमें ओरिजिनल वाला हार्डवेयर एड्रेस नहीं हो, क्योंकि ओरिजिनल वाला आपको पता है। अगर आप उसके पैकेट देखोगे अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल मैक एड्रेस, उसके पैकेट देखने हैं, विच मीन्स ऐसे पैकेट्स देखने हैं जिसमें ओरिजिनल वाला हार्डवेयर मैक एड्रेस नहीं हो, कोई और ही मैक एड्रेस हो, 192.168.11 का, विच इज राउटर का। सो एंड लकीली हमें ये सारे आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस मिले हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि इस आईपी एड्रेस पर है 192.168.11। बट हम तो पहले से जानते हैं कि इस आईपी पर कोई और ही मैक एड्रेस है, इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया यूजिंग नॉट साइन। नॉट का मतलब है कि सब कुछ पैकेट दिखाइए बट इस हार्डवेयर एड्रेस के पैकेट नहीं आने चाहिए जो ओरिजिनल है। सो बचे कौन से, जो फेक है, तो फेक वाले पैकेट साथ। तो ये सारे फेक मैक एड्रेसेस हैं। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि ये एक्सचेंज हो रही है, लाइक मैक एड्रेस जो है वो चेंज हो रहा है, इवन राउटर का चेंज हो रहा है, किसी और डिवाइस का नहीं, राउटर का। अगर किसी और डिवाइस का होता है तो हम लोग कोई और इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं कि हो सकता है कि डिवाइस ने ही मैक एड्रेस चेंज कर दिया हो। होता है ना कि लाइक हम टेम्परेरी मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं अपना, तो हो सकता है किसी डिवाइस ने चेंज कर दिया हो, बट राउटर के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो थोड़ा सा लाइक वियर्ड है और थोड़ा वो है, लाइक सस्पिशियस है। ओके, ये तो हो गया ठीक है। इवन आप ये सेम एनालिसिस है, आप इसके थ्रू कर सकते हैं एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन। आपको एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन भी बताएगा कि आपके ट्रैफिक में डुप्लीकेट आईपी एड्रेस फाइंड हुआ है। देखिए, इसमें आपको ये एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन भी बता रहा है कि ये सारे जो पैकेट है, विच इज 192.168.11 की जो पैकेट है, इनका जो आईपी एड्रेस है वो डुप्लीकेटेड है। मतलब कि जो मैक एड्रेस है वो तो चेंज हो रहा है, मतलब आईपी डुप्लीकेटेड है। मतलब कि ये एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन ये कह रही है कि दो मैक एड्रेसेस पे सेम आईपी है, इसलिए वो डुप्लीकेटेड बता रहे हैं। बट एक्चुअल में हम लोग जानते हैं कि ये आईपी का डुप्लीकेशन नहीं है, ये मैक एड्रेस का चेंज होना है। तो आपको एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन के थ्रू भी सेम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका जो मैक एड्रेस था वो पहले वाला क्या था, ओरिजिनल वाला मैक एड्रेस ये था, विच इज 7C राउटर का, बट यहाँ पर जाकर चेंज हो गया, विच इज 5A हो गया। तो आपको ये एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन बता देगा वायरशार्क का। बट समटाइम्स क्या होता है कि वायरशार्क का जो एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ओके, अब ये तो पता चल गया कि एआरपी स्पूफ अटैक हो रहा है। तो अब ये पता चल सकता है कि लेट्स से इस आईपी पर, विच इज 08, सॉरी, इस मैक एड्रेस पर 5A, इस पर कोई और आईपी एड्रेस है या नहीं है। क्योंकि हमने अभी देखा कि राउटर इस मैक एड्रेस पर है जो फेक है। अब वी कैन फाइंड आउट कि इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस पर कोई और भी आईपी है क्या। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर को मॉडिफाई करके what we can do, we can remove all these। ओके, अब मैं इसको ना चेंज कर देती हूँ, which is here we have this MAC एड्रेस। ओके, अब मुझे ये फाइंड करना है कि इस MAC एड्रेस पर कौन सी और आईपी है। तो सिंपल हम MAC एड्रेस वाला फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं और इस आईपी को, इस MAC एड्रेस को चेंज कर दीजिए। तो वी कैन मॉडिफाई मैनुअली 27, देन अब जो भी पैकेट्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं वो इस मैक एड्रेस के हैं। ओके, जो हमारा फेक मैक एड्रेस है। अब देखिए इसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पहले तो ये सारे वही पैकेट्स आ गए जो राउटर के हैं। राउटर ये कह रहा है कि मैं इस आईपी पर हूँ। इवन एक और डिवाइस है विच इज 192.168.105, ये भी कह रहा है कि मैं इस आईपी एड्रेस पर हूँ। इसका मतलब कि वी कैन से दैट ये डिवाइस आपके मैक एड्रेस, आपके जो राउटर के आईपी उसको वो कर रहा है, स्पूफ कर रहा है। तो मतलब कि ये हमारा अटैकर है यहाँ पर, 192.168.1105 हमारा अटैकर है, बिकॉज ऑफ द सेम मैक एड्रेसेस। पहले मैक एड्रेस वाला ये यूज कर रहा था, अब ये मैक एड्रेस फ्रॉम नोवेयर आया कहाँ से, मतलब कि ये जो आईपी है ये आई कहाँ से।
तो कभी कभी क्या होता है, लेट से कोई अटैकर है, वो अटैक कर रहा है, तो सबसे पहले उसने लेट से फर्स्ट पैकेट शेयर किया, फिर कुछ भी किया उसने। तो जब वो कोई भी अटैकर, लेट से अटैकर आया, अटैकर ने ये देखा कि जो राउटर है, राउटर का मैक एड्रेस क्या है, अटैकर ने ये देखा कि राउटर का मैक एड्रेस क्या है, तो अटैकर एआरपी की रिक्वेस्ट भेजेगा। तो जब अटैकर ने रिक्वेस्ट भेजी एआरपी की, तो उस टाइम पे अटैकर का जो मैक एड्रेस है, उसकी एआरपी, सॉरी, उसका मैक एड्रेस और उसकी आईपी नोट हो गई। तो इसलिए हमें इधर डिस्प्ले हो रही है विच इज 192.168.1105 इज एट दिस मैक एड्रेस, विच मीन्स ये मैक एड्रेस एंड ये मैक एड्रेस दोनों ही सेम है। इसका मतलब कि जो यूजर आपकी आपके राउटर की आईपी को स्पूफ कर रहा है, वो 192.168.1105 वाला है। बट ऐसा हर बार होता नहीं है। लाइक हो सकता है कि आपको ऐसा कोई डिवाइस दिखे ही नहीं जो आपके लाइक जो सेम मैक एड्रेस पर हो। ओके, तो ऐसा भी होता है, बट अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि पहले तो राउटर है इस मैक एड्रेस पर जो फेक है, एक और डिवाइस है जो इस मैक एड्रेस पर है। ओके, तो मतलब कि ये हमारा कल्परेट हो सकता है कि और कोई मैक एड्रेस नहीं है। ओके, और वी हैव दिस वन, और बस एक ही आईपी एड्रेस है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार पूरे एआरपी का फ्लो चेक कर सकते हैं कि पैकेट का फ्लो हो कैसे रहा है, थोड़ा एनालाइज करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई पैकेट नंबर 11 से, तो ये सारे रिक्वेस्ट पैकेट गए, सारे सही है। देन वी हैव रिसीव दिस रिस्पॉन्स फ्रॉम द राउटर कि मैं इस मैक एड्रेस पर हूं, जो ओरिजिनल है। देन वी हैव दिस वन, सब कुछ सही चल रहा है अभी तक तो। ओके, ये भी सही है, 192.168 एट दिस आईपी। देन ये दिस हुएस दिस वन आईपी, टेल दिस वन, एंड 192.164 इस आईपी पर है, ये भी ठीक है। अब यहाँ से चेंजिंग होना स्टार्ट हो गया पैकेट नंबर 35 से, 35, 3564, पैकेट नंबर 3564 से आईपी चेंज होना, सॉरी, मैक एड्रेस चेंज होना स्टार्ट हो गया राउटर का। ओके, तो यहाँ पर पैकेट नंबर 3564 पर चेंज हो गया। तो एक बार टाइम का देख लेते हैं हम लोग। टाइम को मैं चेंज कर रही हूँ टू द दिस वन, सेकेंड सिंस प्रीवियस डिस्प्ले पैकेट। सो आफ्टर 1 मिनट, यहाँ पे सॉरी 1 सेकेंड का डिले है यहाँ पर। 1 सेकेंड बाद राउटर ने खुद ही बोला कि मैं इस मैक एड्रेस पर, मतलब किसी ने रिक्वेस्ट भेजी होगी, फिर फ्रॉम नोवेयर राउटर ने ये बोलने लगा, राउटर, कि मैं दूसरे मैक एड्रेस पर हूँ। ओके, मतलब कि इस पॉइंट पर अटैक हो चुका था, वी कैन से दैट, बिकॉज राउटर का मैक एड्रेस चेंज हो गया। देन वी हैव दिस 3 पैकेट्स, देन वी हैव दिस वन हु हैज दिस आईपी। सो एक और डिवाइस है जिसने रिक्वेस्ट किया इस आईपी के लिए, 192.168.11504। देन एक और रिस्पॉन्स आया फ्रॉम द अटैकर साइड, और इसलिए अटैकर की जो मैक एड्रेस है वो रिवील हो गया। मतलब कि जो अटैकर का मैक एड्रेस है और जो राउटर का मैक एड्रेस है, जो फेक वाला है, दोनों सेम है। और ये रिवील कैसे हुआ, क्योंकि एक डिवाइस ने अटैकर का मैक एड्रेस पूछ लिया कि हु एस 192.168.1105, और फिर अटैकर ने बता दिया कि मैं इस मैक एड्रेस पर हूँ। अब ये जो मैक एड्रेस है और जो राउटर का मैक एड्रेस है, जो फेक वाला है, दोनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब वी कैन से 192.168.1105 इज अ अटैकर है, क्योंकि इसका मैक एड्रेस और राउटर का मैच कर रहा है। बट समटाइम्स हो सकता है कि ऐसा नहीं भी हो, आपको मिले ही नहीं और कोई आईपी सेम मैक एड्रेस पर, तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि एक्चुअल में कौन अटैकर है। ओके, तो हम लोग नेटवर्क के लॉग्स चेक कर सकते हैं इन दैट केस। ओके, फिलहाल तो यही था इसमें कि एआरपी स्पूफ कैसे एनालाइज करते हैं, एंड फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं आप ये वाला विच इज एआरपी स्पूफ वाला। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा, आप अपनी आईपी रिप्लेस कर लीजिएगा एंड अपना मैक एड्रेस रिप्लेस कर लीजिएगा। तो आपका भी लाइक आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कोई स्पूफ अटैक है या नहीं है। और ये फिल्टर लाइक काफी सिनेरियोज में वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करता। लाइक अ काइंड ऑफ स्टैटिक है, मतलब कि काफी सिनेरियो में वर्क करेगा। और बस आपको उसमें जो चेंज करना है वो आपका आईपी एड्रेस है और मैक एड्रेस है, जो भी आप जिसके ऊपर भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यस मैडम। और मैडम अभी क्या है कि अब कोई मोबाइल भी होता है ना, उसमें भी एक प्राइवेट एड्रेस आता है।
तो सब में ही अभी ये सिनारियो होता ही है कि ड्यूअल मैक एड्रेस हो जाता है। ओके, तो मैक एड्रेस सेम होता है? नहीं, मैक एड्रेस डिफरेंट होता है। आपका फिजिकल मोबाइल का मैक एड्रेस अलग है, और हम्म। ये मोबाइल में जो आता है ना, वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो एक ऑप्शन आता है प्राइवेट मैक एड्रेस, तो उसमें भी डिफरेंस आता है। ओके, सो इन दैट केस फिर तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा ना, लाइक मैंने आपको कहा कि हो सकता है अगर कोई और डिवाइस है, लाइक से मोबाइल हो सकता है, ये भी सिस्टम भी होते हैं, वो अपना टेम्परेरी मैक एड्रेस चेंज करते रहते हैं। लाइक अगर कोई आपने ऑटोमेशन का टूल वगैरह अप्लाई कर रखा है, तो उस केस में भी मैक एड्रेस चेंज हो जाते हैं। बट यहाँ पर जो मैक एड्रेस चेंज हो रहा है वो राउटर का हो रहा है, इसलिए मेन कंसर्न था। अदरवाइज अगर कोई हम्म। डिवाइस का होता तो आपको फर्दर एनालाइज करना पड़ता। लाइक फिर आप कंक्लूड नहीं कर सकते थे कि एआरपी स्पूफिंग अटैक ही है। बट यहाँ पे स्पेशली राउटर के साथ हो रहा है, तो वी कैन से दैट, क्योंकि राउटर का मैक एड्रेस कौन ही चेंज करेगा, राइट? जब तक कि कोई मैनुअल बैठ के नहीं कर रहा हो वहां पर। अदरवाइज लाइक हम्म। चेंज हो रहा है तो इट कैन बी अ साइन ऑफ ए एआरपी स्पूफ अटैक। ऐसा नहीं कि बाई सिंपली सिंग वायरशार्क फाइल हम लोग सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। कभी कभी अदर एक्सपेक्ट्स भी देखने पड़ते हैं, लाइक डिवाइस को जिसके ऊपर आप एनालाइज कर रहे हैं, या फिर लॉग्स को एक्सेट्रा। तो फाइनल में जाकर आपको कंक्लूजन मिल ही जाता है। ओके ओके। नाउ वी कैन मूव टू द एफटीपी पार्ट। ये एआरपी स्पूफ वाली और रिवर्स एआरपी मैं आपको शेयर कर दूंगी फाइल, इन केस अगर आपको एनालाइज ठीक। कर। ओके ओके। ओके, नाउ वी कैन एनालाइज द एआर एफटीपी ट्रैफिक। सो एफटीपी ट्रैफिक भी काफी कॉमन है। और एफटीपी जो वर्क करता है वो करता है टू प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे। एफटीपी वर्क्स अंडर टीसीपी। सो एफटीपी के टू प्रोटोकॉल्स है, फर्स्ट 21 एंड 20। So 20 is mainly for sending the 20 is mainly for, yes, sending the files, and 21 is mainly for making the connections. Okay, so FTP uses two TCP connections for communication. One to pass control, which is for making the connection. So for making the connection, TCP use 21, and for sharing the file, TCP uses port number 20. Okay, between the client and server. तो ये तो हो गया पोर्ट। और एफटीपी मेनली फॉर यूजेस मेनली फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल्स। ओके, मेन होता है कि इवन द यूजर ऑथेंटिकेशन भी होता है, टेक्स प्लेस ओवर द कंट्रोल कनेक्शन और पोर्ट नंबर 21। पहले टीसीपी हैंडशेक होता है, फिर यूजर नेम और पासवर्ड एक्सचेंज होते हैं, लाइक यूजर नेम और पासवर्ड क्लाइंट अप्लाई करता है टू एक्सेस द सर्वर, तो वो भी पोर्ट नंबर 21 पर होता है। एंड जो एक्चुअल फाइल शेयरिंग स्टार्ट होती है वो पोर्ट नंबर 20 पे होती है। बट इसमें मेन थिंग ये है कि जो एफटीपी है वो टू टाइप्स ऑफ मोड्स पे वर्क करता है, एक्टिव और पैसिव। सो एक्टिव एक लाइक एक्टिव इज लाइक अ डिफॉल्ट पोर्ट है, और पैसिव इज लाइक अ पोर्ट विच यूजेस इन सम स्पेशल सिनेरियोस। ओके, so now what is the difference between the like active port and passive port? Active port active mode like same होता है, इसमें we have द क्लाइंट एंड द सर्वर। सो एक्टिव मोड में क्या होता है कि क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। सो क्लाइंट अपना मैक एड्रेस, अपना अपनी आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर यूज करता है। सर्वर अपनी आईपी और पोर्ट नंबर यूज करता है, लाइक जो सिंपल कम्युनिकेशन में होता है। बट पैसिव में क्या होता है कि पैसिव में जो एफटीपी सर्वर है वो वेट करता है एफटीपी क्लाइंट का, कि वो कब मुझे आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर सेंड करे और उसी पोर्ट पे मैं कम्युनिकेशन करूंगा। दैट इज अ पैसिव मोड। So in the passive mode, the FTP server waits for the FTP client to send it a port number and the IP address to connect to. तो पैसिव मोड में स्पेशली जो क्लाइंट होता है वो सर्वर को देगा एक मैक एड्रेस, एक आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर, जिसके थ्रू जो सर्वर होगा वो कनेक्ट करेगा। And in the active mode, the server assigns a port number and IP address will be the same as FTP client making the request. मतलब कि एक्टिव मोड में तो कॉमन जो कम्युनिकेशन होता है वैसा ही होगा। सर्वर अपना आईपी एड्रेस यूज करेगा, अपना पोर्ट यूज करेगा,
और सेम एज क्लाइंट अपना आईपी और अपना पोर्ट यूज करेगा। बट पैसिव मोड में स्पेशली यही होता है कि जो सर्वर होता है वो वेट करता है फ्रॉम द क्लाइंट साइड कि जब कब क्लाइंट मुझे पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस शेयर करेगा एंड उसी पे मैं कनेक्ट करूंगा, उसी पे हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन लाइक फायरवॉल या फिर कोई और लाइक सिक्योरिटी मैकेनिज्म की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, चूजिंग एक्टिव वर्सेस पैसिव एफटीपी हैज टू डू विद द फायरवॉल्स। Firewalls are the piece of software firewalls की information है. Okay, now, if you are behind a firewall, some ports may be entirely unavailable to you because they are blocked by the firewall. Let's say हमने कोई firewall का मे बी रूल बनाया और उसमें आप कोई सर्टेन पोर्ट नंबर ब्लॉक कर रहे हैं, तो क्या होगा? फिर एफटीपी कनेक्शन होगा ही नहीं। और जब एफटीपी कनेक्शन होगा नहीं तो आप ट्रांसमिट और कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कोई फायरवॉल रूल बनाया कि पोर्ट नंबर 21 ब्लॉक हो गया, या पोर्ट नंबर 21 आपने ब्लॉक कर रखा है, और पोर्ट नंबर 21 एंड 20 आर मेनली फॉर द एफटीपी। लेट से समहाउ आपने लाइक कोई पर्टिकुलर रीजन की वजह से आपने ब्लॉक कर रखा है, तो इस केस में क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा नहीं, क्योंकि एफटीपी कौन सा पोर्ट यूज करता है? 20 एंड 21। इसलिए वी आर दिस पैसिव मोड। पैसिव मोड मेनली इसलिए ही होता है कि लेट्स अगर कोई फायरवॉल है या फिर कोई भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक पोर्ट को ब्लॉक कर रहा है, तो आप सर्वर को ये बोलेंगे कि आप सर्वर को अपनी साइड से कोई पोर्ट नंबर और कोई मैक एड्रेस असाइन करेंगे, एंड देन उस पर फिर कम्युनिकेशन होगा। इससे क्या होगा? दूसरा पोर्ट यूज करेगा सर्वर और दूसरी आईपी यूज करेगा सर्वर, जो आपके फायरवॉल अलाउ कर देगी। ओके, सो लेट्स से यू आर बिहाइंड फायरवॉल that blocks port number 20 for whatever reason. Most commonly, FTP server uses port number 20 to transfer the data. If it's up to the server active mode, your FTP client is likely to be assigned port number 20, which is blocked. Okay, so you can use passive mode to get around this. Your FTP client can suggest a port for the client and server to use. So FTP client एक पोर्ट असाइन कर देगा सर्वर को कि इस पोर्ट पर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो बेसिकली एक्टिव मोड इज लाइक अ डिफॉल्ट होता है, और जो पैसिव मोड होता है वो लाइक सर्टेन सिनेरियो में यूज होता है। ओके, अभी हम देखेंगे कि कब ये लाइक ये पैसिव मोड कैसे अनेबल होता है, लाइक अगर आपको वायरशार्क में एनालाइज करना है, और कौन सी आईपी और कौन सा पोर्ट नंबर ये असाइन करता है। ओके, तो एक बार सिंपल एक एफटीपी का कम्युनिक लाइक वो देखते हैं। तो एफटीपी की फाइल है, जस्ट अ मिनट। सो ये एफटीपी की फाइल है, एंड इसका मैं कलर चेंज करेंगे जस्ट। सो लेट्स से इस फाइल में 10,000 पैकेट्स है। ओके, सो वी कैन चेक आउट कि कौन से पैकेट कितने प्रोटोकॉल के, पहले प्रोटोकॉल हायरार्की की हेल्प से। तो इसमें स्पेसिफिकली एफटीपी के ही पैकेट है। ओके, वी आर दिस टीसीपी। टीसीपी के लाइक 100% पैकेट है, विच इज एफटीपी के डेटा के पैकेट्स 66% है, एंड देन एफटीपी के पैकेट 61 पैकेट्स एफटीपी के हैं। ओके, मतलब इसमें पूरी फाइल में एफटीपी का ही ट्रैफिक है, एफटीपी का डेटा और उसके पैकेट का, लाइक उसके करेक्शन का और उसके फाइल का, लाइक कौन सी फाइल ट्रांसमिट करिए एफटीपी डेटा, वो हो गया, एंड कनेक्शन मेकिंग जो ये वो हो गया एफटीपी का मेन लाइक मेन पैकेट्स। सो इसमें फिल्टर अप्लाई करने की एज इफ कुछ नीड है नहीं। सो थोड़ा ओके, सो फर्स्ट जो पैकेट है वो है, मैं इसको रिमूव कर लूँ हेडर लेंथ और ओके, सो जो फर्स्ट पैकेट है वो शेयर किया है इस आईपी ने, मुझे द क्लाइंट इज 192.168.2.113, और जो सर्वर है वो ये है, एंड दिस इज द पोर्ट।
जो पोर्ट यूज कर रहा है क्लाइंट वो तो है अननोन पोर्ट विच इज 60592 अननोन पोर्ट है, बट जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो पोर्ट नंबर 21 पर हो रहा है विच इज एफटीपी। और फर्स्ट क्लाइंट ने रिक्वेस्ट शेयर करी फॉर द सिन पैकेट। ओके, वी आर द सिन पैकेट, देन वी आर रिसीविंग द सिन एग फ्रॉम द सर्वर एंड देन एग पैकेट। तो ये तो सिंपल हो गया एच टी टी पी का, सॉरी टीसीपी का थ्री वे हैंडशेक, सिन सिनेक एंड एग। इसके बाद लाइक हैंडशेक के बाद और पोर्ट नंबर यहाँ पे 21 है, 21 इज मेनली फॉर मेकिंग द कनेक्शन। उसके बाद सर्वर ने, सॉरी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया या एक पैकेट, सॉरी सर्वर ने रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर ने रिस्पॉन्स किया विद द वर्जन ऑफ द एफटीपी कि कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। सो वी कैन चेक आउट। सो वी हैव दिस टीसीपी, इसमें सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, एंड फ्रॉम द फाइल एफटीपी वी हैव दिस वर्जन हियर, ओके विच इज 220। अब एफटीपी भी एक पर्टिकुलर कोड सेट यूज करता है। अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊं, इट इज लाइक एफटीपी के भी खुद के मैसेज होते हैं और खुद के ही कोड्स होते हैं विच इज एफटीपी रिस्पॉन्स। So we can use this Wikipedia and okay. So we can search for code number 220. 220 and here we can search for 220. Okay. 220 is mainly for server ready for a new user. Okay, so server is ready. So that is why server is sharing the port number, sorry, the version number of FTP server, which is VSFTPD, which is very secure file transfer protocol daemon. ये वर्जन है और 2.3.5 ये वर्जन हो गया। ओके, देन द क्लाइंट इज आस्किंग फॉर द ऑथेंटिकेशन विच इज ऑथ TLS authentication. The server is like sharing the egg packet first, and then the server is sharing to please log in with your username and password. So 5504, please log in with username and password. Okay, then again the users share the auth SSL. Okay, then again the server requested please log in with the username and password. Then जो client है, client ने username apply किया anonymous, user anonymous. Then server ने बोला कि password apply करिए, and the password is this one which is anonymous@example.com. ये हो गया username and ये हो गया password, simple है। Then we have this FTP egg packet, then login successful. Now here login successful हो गया 230। अगर आप कोड चेक करना है तो 230 is for user login proceed. Now इसमें अगेन वी आर दिस सिस्टम कमांड्स, लाइक एफटीपी की खुद की कमांड्स होती है, जैसे लिनक्स में कमांड्स होते हैं ऐसे एफटीपी में होती है। सो वी आर दिस सिस्टम। ओके, इफ एफटीपी, सो विकिपीडिया की यूज करते हैं। ओके, सो वी हैव these commands, let's see XYST for the system, return the system type. Okay, so this is the request sent by the user, and then we have received the response which is Unix type. Okay, level 8 or L8. Okay, then we have this feed for the features. So now the client is asking for the features, and here we have this feature. अगर हम ये देखेंगे 211 is for the code and features, but यहाँ पे features visible नहीं हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर वी हैव दिस वन कि फीचर्स है, फीचर्स शेयर भी करे हैं बट फीचर्स विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपको सारे फीचर्स देखने या फिर जो भी सर्वर ने रिस्पॉन्स किया है, आप राइट क्लिक करिए, फॉलो टीसीपी स्ट्रीम, इसके थ्रू आप पूरा कम्युनिकेशन देख सकते हैं। ओके, पहले तो पूरा कम्युनिकेशन आएगा स्टार्टिंग से कि क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ एंटायर एफटीपी ये कनेक्शन में। ओके, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले सर्वर ने रिक्वेस्ट भेजी, सॉरी सर्वर ने वर्जन भेजा, यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी फॉर द लॉगिन। ओके, देन सर्वर ने बोला कि यूजर नेम पासवर्ड अप्लाई करिए अगेन, एंड देन यूजर नेम एनोनिमस है, पासवर्ड ये है, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो जो ब्लू कलर है वो सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है, रेड कलर जो क्लाइंट दे रहा है। तो क्लाइंट ने बोला कि सिस्टम कौन सा सिस्टम टाइप है, यूनिक्स है। क्लाइंट ने बोला कि फीचर्स कौन कौन से अवेलेबल है, तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। ओके, ये सारे मीन्स ईपीआरटी है, ईपीएसवी है, पैसी मोड है, साइज है, UTF-8 है एंड सो ऑन। अभी ईपीआरटी क्या होता है, वी कैन सर्च हियर ईपीआरटी, इट इज फॉर स्पेसिफाइंग द एन एक्सटेंडेड एड्रेस एंड कोड टू विच द सर्वर शुड कनेक्ट। ईपीआरटी का आप समझ सकते हैं कि इट इज लाइक अ पैसिव मोड।
अगर आपको पैसिव मोड में एंटर करना है तो आप ईपीआरडी का यूज करेंगे. ओके. एंड विद दिस ईपीएसबी, तो अगेन वी कैन सर्च हियर फॉर द ईपीएसबी. ओके, एंटर द एक्सटेंडेड पैसिव मोड, इसका मतलब कि पैसिव मोड में एंटर कर लिया है. सेम एज वी हैव दिस वन एमडीटीपी एंड सो ऑन पैसिव. दिस इज फॉर द रेस्ट ट्री साइज एंड सो ऑन. ओके, सो ये सारे फीचर्स अवेलेबल है. अभी ये सारे फीचर्स आपको विजिबल होंगे नहीं चैट पर, मतलब कि वायशा की पैकेट लिस्ट पर, क्योंकि वायशा की पैकेट लिस्ट में वो शो होता है लाइक जो लाइक पैकेट इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, मतलब कि एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया कि सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, प्रोटोकॉल एंड इंफॉर्मेशन, और कुछ भी नहीं होगा. अगर आप कोई लेट्स से आपको आपको कोई इंफॉर्मेशन देखनी है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा. ओके, यू हैव टू फॉलो इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सारे फीचर्स देखने हैं, सो यू राइट क्लिक एंड यू फॉलो इट टू द टीसीपी स्ट्रीम. यहाँ पर आपको सारे फीचर्स दिखेंगे. इवन यहाँ पर भी विजिबल नहीं होगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी एक्चुअल में कहाँ पर विजिबल होते हैं. ओके, अभी के लिए ये सारे फीचर्स है. देन जो क्लाइंट है उसने रिक्वेस्ट किया फॉर ओपनिंग फॉर द ऑप्शन ऑफ UTF-8 फॉर द एनकोडिंग. सो सर्वर ने बोला मैं तो हमेशा UTF-8 में ही रहता हूँ. ओके, देन विद CWD विच इज करंट change working directory. So client is changing the directory to the root directory. Root है, so directory successfully changed. Then PWD, which is print working directory, इस directory में है type 1. So now we are switching to the binary mode for the type 1. Then passive. If I type passive, which is I am entering in the passive mode. अब ये रहा वो information. Like इसमें ही वही information है, the IP address and the port number जिसके थ्रू जो सर्वर है वो कनेक्ट करेगा. अब इसको पढ़ते कैसे वो मैं भी आपको बताऊंगी, इसको कैसे रीड करते हैं. ओके, एंड देन वी हैव दिस लिस्ट. नाउ क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे सारी लिस्ट चाहिए, लाइक सारी लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, लाइक फाइल्स एंड फोल्डर जो भी है. देन ये क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है. सो सर्वर ने रिस्पॉन्स किया, हियर कम्स द डायरेक्टरी लिस्टिंग और डायरेक्टरी सेंड. होके मतलब कि सर्वर ने पहले भेजी सारी डायरेक्टरीज. डायरेक्टरी मतलब जो भी फाइल्स और फोल्डर्स है उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, और फिर रिस्पॉन्स भेजा कि मैंने डायरेक्टरी सेंड कर दी है. अब डायरेक्टरी कहाँ पर है, मतलब कि जब यूजर ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे सारी जब यूजर ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स शो करवाइए, तो सर्वर ने बोला कि ये लो सारे फाइल्स एंड फोल्डर. बट अभी अब सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स कहाँ पर है वो देखनी है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ स्ट्रीम. इस स्ट्रीम में आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी, मतलब कि अभी आप जीरो स्ट्रीम पर हैं. इसको आपको प्रेस करना है अपर की साइड. ओके, मतलब कि जो उसकी अपर की उसको आपको वन टाइम प्रेस करना है. सो अगर मैं इसको वन टाइम प्रेस करूंगी तो देखिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी. इफ आई प्रेस वन टाइम, अब देखिए ये सारी फाइल्स और डायरेक्टरी है जो सर्वर ने भेजी है क्लाइंट को. क्योंकि सर्वर क्लाइंट ने क्या बोला था कि सारी लिस्ट करिए फाइल्स एंड डायरेक्टरीज जिस भी फोल्डर में मैं हूं अभी. तो ये सारी जो फाइल्स और डायरेक्टरीज है उस करंट फोल्डर में, और ये सारी फाइल्स सर्वर ने शेयर करी, लाइक लिस्ट ऑफ फाइल्स. ओके, एक्चुअल में फाइल नहीं, ओनली लिस्ट ऑफ फाइल्स. सो इसमें वी हैव दिस फाइल 100 GB, 1000 GB एंड सो ऑन. ये सब टेम्परेरी लाइक ऐसी फाइल है. मेन है कि वी हैव दिस परमिशन, फाइल की साइज आ गया, और वी हैव दिस आई डोंट नो, आई थिंक ये डेट और टाइम है. मे नहीं, डेट टाइम तो ये है, मे बी ये साइज हो सकता है, इन द साइज हो सकता है. ओके, एंड देन वी हैव दिस वन, फाइल का नेम आ गया, क्या टाइम आ गया ये कि कब बनी थी या फिर कब मॉडिफाई हुई थी. तो ये सारी इंफॉर्मेशन सर्वर ने सेंड करी. तो अगर आप इसको अभी क्रॉस करेंगे एंड इफ आई अप्लाई, सो इस प्लेस पर वी आर रिक्वेस्टेड फॉर द फाइल्स. कहाँ था, लिस्ट. सो इस पॉइंट पर सर्वर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया कि आई जस्ट वांटेड टू नो ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स प्रेजेंट इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिसमें मैं हूँ उसकी फाइल्स और फोल्डर्स शो करिए. तो सर्वर ने शो किया, बट आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो नहीं होने वाली है, क्योंकि पैकेट लिस्ट आपको क्या शो करता है, एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, डिटेल में नहीं. तो अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देखनी है
जो आपको लगता है कि फायरशॉक में प्रेजेंट है बट पैकेट लिस्ट में शो नहीं हो रही है, तो आपको सिंपली इसको फॉलो अप करना है। फॉलो करना है टीसीपी स्ट्रीम। पहले तो आपको सारी कम्युनिकेशन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर आपको अपर की प्रेस करनी है फ्रॉम द स्ट्रीम, और फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। ये तो एक इन्फॉर्मेशन होगी, फिर से आप अपर की प्रेस करिए तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। तो देखिए ये और इन्फॉर्मेशन होगी, फिर से अपर की वी कैन प्रेस इट। तो ये है कुछ, मैं अभी आपको बताऊंगी कि अभी ओके बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, तो वी कैन क्रॉस नाउ। ओके, और जब आप फॉलो अप करेंगे स्ट्रीम को तो आपको वही फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि ये फिल्टर कह रहा है कि ये सारी वो फाइल्स है जिसमें जिसमें डेटा कंटेन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने राइट क्लिक किया एंड मैंने फॉलो अप किया। अब इसमें ये डॉट डॉट क्या शो कर रहे हैं, ये सारे डॉट डॉट। अब ये सोचिए कि लेट्स से क्लाइंट है, क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये फाइल चाहिए। लेट्स से क्लाइंट ने मंगवाई 10 MB की कोई फाइल मंगवाई, लेट्स से 10 KB की या 10 MB की। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे 10 MB की फाइल चाहिए, तो सर्वर तो भेजेगा। तो जब सर्वर सेंड कर रहा है तो ये सारा डेटा ही है, मतलब कि ये सारा डेटा है। डेटा मतलब कि 10 MB की जो फाइल आपकी जा रही है, अब आपको पता है कि जो फाइल है वो चंक्स में जाती है, एक साथ नहीं जाती है। तो जो चंक्स में आपकी फाइल जा रही है वो उसका ये डेटा है पूरा। तो जो डॉट 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 है ये आपकी फाइल ट्रांसमिट हो रही है, उसका डेटा है। तो जब मैंने फॉलो अप किया, देखिए अभी एक फॉलो अप की रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब कि ये टाइप का फिल्टर आ रहा है विच इज टीसीपी स्ट्रीम इक्वल 3। ओके, इक्वल 3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, स्ट्रीम आईडी 3 है। तो जब आप कोई फॉलो अप करते हैं तो आपका फिल्टर भी अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे, देखिए ये फिल्टर अप्लाई हो गया विच इज टीसीपी स्ट्रीम इक्वल 3। तो ये सारे जो पैकेट्स हैं ये सारे स्ट्रीम 3 के पैकेट्स हैं, मतलब कि पैकेट स्ट्रीम नंबर 3 के पैकेट्स हैं ये। और इन सब पैकेट्स में क्या है, इन सब पैकेट्स में आपका डेटा है, मतलब कि जो फाइल आपकी ट्रांसमिट हो रही है चंक्स में उसका डेटा है ये। अगर मैं आपको दिखाऊं इधर, देखिए काफी सिंपल है, बस आपको थोड़ा इसमें ये देखना है कि हम क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये देखिए एफटीपी डेटा। एफटीपी डेटा हम कब यूज करते हैं, एफटीपी डेटा जब हम कोई फाइल शेयर कर रहे होते हैं। और देखिए रिट्राइविंग 10 MB.zip फाइल। ओके, इट इज अ जिप फाइल इफ आई हियर। सो ये सारा एफटीपी का डेटा ही है, 10 MB की जिप फाइल। तो ये सारी 10 MB की जो जिप फाइल वो जा रही है। तो जा रही है तो ऐसा तो नहीं है कि पैकेट पैकेट तो होंगे उसके, तो ये सारे उसी के पैकेट्स हैं। इसलिए इतने सारे पैकेट्स एफटीपी डेटा के हैं। ये सारे पैकेट्स आपके फाइल के हैं, कि मतलब जो आप ट्रांसमिट, जो आपका सर्वर ट्रांसमिट कर रहा है क्लाइंट को। इफ आई राइट क्लिक, इफ आई अगेन फॉलो, और ये सारे डॉट डॉट क्या है, ये सारे डॉट डॉट एफटीपी डेटा है, कि मतलब फाइल का डेटा है जो ट्रांसमिट हो रहा है चंक्स में। ओके, और ये कैसे आपको दिखा, ये आपने स्ट्रीम आईडी के थ्रू चेक किया। और अगर आपको स्ट्रीम आईडी अप्लाई करेंगे तो आपका पीछे फिल्टर भी अप्लाई हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको फिर से एनालाइज करना है या फिर से बैक जाना है तो आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा, एंड देन हम बैक आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल था। तो पहले हमने ये देखा कि टीसीपी सिंसिनेट एक्ट, फिर हमने ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन देखी, फिर हमने देखा कि जो क्लाइंट है वो क्या क्या कमांड्स टाइप कर रहा है और सर्वर उसको क्या रिस्पॉन्स कर रहा है वो देखा हमने। ओके, तो ये सारे कमांड्स है। अब देखिए इसमें लिस्ट करने के बाद कनेक्शन पता नहीं कैसे भी टूट गया, तो फिर से कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ यहाँ पे सिनसिनेट है। ओके, फिर से कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ और फिर से ब्रेक हो गया एनी हाउ, एंड फिर से स्टेब्लिश हुआ। तो ये थोड़ा बहुत चलता रहा यहाँ तक। बट यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे विच इज दिस पार्ट, इतना पार्ट। अब देखिए इसमें क्या था कि क्लाइंट ने बोला टाइप 1, मतलब बाइनरी मोड में हम स्विच कर रहे हैं। ओके, सेकेंडली क्लाइंट ने बोला कि नाउ अब आप जो एक्टिव मोड को यूज कर रहे थे इतनी देर से, पैसिव मोड में स्विच कर लो, रिक्वेस्ट पैसिव। सो नाउ वी वांट कि जो सर्वर है वो पैसिव मोड में स्विच कर ले। तो सर्वर ने क्या बोला, ठीक है, आई एम एंटरिंग इनटू द पैसिव मोड। अब वो पैसिव मोड में काम करेगा। ठीक है, कैसे पता मुझे, क्योंकि यहाँ पे पैसिव लिखा हुआ है और सर्वर भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है पैसिव मोड है। ओके, ऊपर शायद आपको ये मेंशन हो जाएगा कि एक्टिव या पैसिव। वैसे तो एक्टिव पैसिव यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि डिफॉल्ट एक्टिव होता है। अगर आप पैसिव यूज करेंगे तो आपको स्पेसिफिकली दिख जाएगा कि ये पैसिव का पैकेट है। ठीक है, अब देखिए इसमें जब क्लाइंट ने बोला कि पैसिव मोड पे कनेक्ट करना है, तो सर्वर ने बोला ठीक है, और सर्वर ने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी अपने साथ। ये रही वो इन्फॉर्मेशन।
अब इस इंफॉर्मेशन में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैसिव मोड क्या करता है कि जो क्लाइंट होता है वो खुद ही स्पेसिफाई करता है आईपी एड्रेस एज वेल एज पोर्ट नंबर। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन में आपका वही है, आपका आईपी एड्रेस है और पोर्ट नंबर है। अब कैसे इसको पढ़ना है, क्योंकि आईपी तो आपको सिंपल यही है, 199013077073 की आपकी आईपी हो गई इतनी। ओके, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप चेकआउट कर सकते हैं फ्रॉम हियर। इसको मैंने मूव कर दिया, लिखिए फ्रॉम द एफटीपी वी आर जस्ट एंटरिंग द पैसिव मोड। ये हो गई आपकी आईपी एड्रेस। ओके, ये हो गया आपका पैसिव आईपी एड्रेस विच इज 90130773। और ये हो गया पैसिव पोर्ट नंबर। अब ये पोर्ट नंबर कहाँ से आया, ये पोर्ट नंबर है इन दोनों इन्फॉर्मेशन से। इसको कैसे आपको निकालना है, मैं आपको बताती हूँ। इस 103 को कहते हैं लेवल 1, 164 को कहते हैं लेवल सेकेंड। ओके, लेवल 1 103, लेवल सेकेंड 164। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, इसको आपको कैलकुलेटर निकालती हूँ। आपको जो पहला नंबर है आपका विच इज 130, 130 को आपको लिखना है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 256 से, मल्टीप्लाई बाय 256। फिर आपको प्लस करना है इसमें 164। कुछ गलती हो गई, यस, 103 है, मल्टीप्लाई बाय 256 प्लस 164। अब देखिए ये जो पोर्ट नंबर है 26532, यही पोर्ट नंबर है जो आपका कैसे पोर्ट जो आपका क्लाइंट सॉरी सर्वर यूज करेगा। ओके, कैसे निकाला, जो 130 है सॉरी 103 है। ओके, ये जो 103 है वो तो हो गया आपका लेवल 1। इसको आपको लेना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 256 से। क्यों, 256 क्या होता है, 256 आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा एफटीपी होता है वो आई थिंक 16 या 64 बाइट्स यूज करता है, कुछ ऐसा ही है। तो आई एम नॉट श्योर। तो मतलब कि वो 256 एक साइज को स्पेसिफाई कर रहा है, इसलिए हमने उसका मल्टीप्लाई किया। 256 एक साइज है आपके एफटीपी पोर्ट का, 103 आपका पहला नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 256 प्लस 164, तो आपका लेवल 2 का है। मतलब कि पैसिव मोड में ऐसे ही लाइक ऐसे ही आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर ट्रांसमिट होते हैं। पहले 4 जो इंफॉर्मेशन होगी वो होगा आपका आईपी एड्रेस, और लास्ट के जो 2 होंगे वो आपके पोर्ट नंबर बताएंगे। पोर्ट नंबर को कैसे निकाला, 103 को आपने मल्टीप्लाई किया 256 से, प्लस कर दिया 164। 103 लेवल 1 है, 164 लेवल 2। ओके, ऑफ पोर्ट नंबर। इन दोनों को आपने लेवल 1 को आपने मल्टीप्लाई किया 256 से और फिर प्लस कर दिया लेवल 2 को, और फिर आपको ये नंबर मिला। तो ये आपका पैसिव पोर्ट है। ठीक है, और ये आपका आईपी है। इसका मतलब कि सर्वर ने ये बोला कि अब मैं इस पर्टिकुलर आईपी और इस पर्टिकुलर पोर्ट पर कनेक्ट करूंगा। ओके, मतलब यूज करूंगा मोबाइल। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन दी इसमें। ओके, सो लेट्स सी। फिर देखिए, अब ये जो पोर्ट नंबर है 26532, अब यही पोर्ट आपका सर्वर यूज करेगा और यही पोर्ट वो यूज कर भी रहा। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, देखिए 26532, 26532, 26532 एंड सो ऑन, 26532। ओके, तो यही वाला जो पोर्ट है, आईपी तो वही थी। आईपी कौन सी है, आईपी आप यहाँ से देख सकते हैं, आईपी भी वही है जो इधर स्पेसिफाई हो रही है। तो इफ आई एक्सटेंड, देखिए आईपी वही सेम है, जस्ट हियर 90130773, वही आईपी है और वही पोर्ट नंबर है। इसका मतलब कि जो पैसिव मोड है वो अनेबल हो गया। अब पैसिव मोड के अकॉर्डिंग यही आईपी होगी, वही पोर्ट नंबर होगा जो क्लाइंट ने भेजा होगा। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब पैसिव मोड में जाना है और कौन सी आईपी है, कौन सा पोर्ट नंबर जिसके थ्रू कनेक्ट कर रहा है आपका सर्वर। ठीक है, तो एट लास्ट कहाँ पे थी, हाँ यहाँ पर हो गया। देन अगेन द सर्वर क्लाइंट रिक्वेस्टेड फॉर द लिस्ट ऑफ ऑल द फाइल्स। पता नहीं कैसे भी कनेक्शन ब्रेक हो गया, फिर स्टेब्लिश हुआ, फिर फाइल्स आ गई थोड़ा बहुत। नाउ हियर वी कैन सी कि यहाँ पर है। Okay, फिर से पैसे मोड ऑन हो गया। यहाँ पे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया फॉर दिस फाइल,
10 MB.zip, ड्राइव 10 MB.zip फाइल। तो अब ये जो फाइल है वो ट्रांसमिट होगी थ्रू द सर्वर टू द क्लाइंट। ठीक है, और इसका जो डेटा होगा उसी को हम कहते हैं एफटीपी डेटा। और वो कौन से पोर्ट नंबर पे होगा? पोर्ट नंबर 20 पर। अब देखिए, यहाँ से डेटा ट्रांसमिट स्टार्ट होगा फ्रॉम हियर, और ये यहाँ पे पैसे मोड ब्रैकेट में दिख रहा है, विच इज पैसे मोड के थ्रू हो रहा है सारा काम। अगर पैसे मोड नहीं होता तो मतलब एक्टिव मोड ही है, क्योंकि एक्टिव मोड डिफॉल्ट होता है। पर अगर यहाँ पे पैसिव मोड है, इसका मतलब पैसिव मोड के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। एंड हियर दिस एफटीपी डेटा की बाइट्स आ गई, पैसिव आ गया, ये फाइल ट्रांसमिट हो रही है। सो हर दो फाइल के बाद, हर दो फाइल की चंक्स के बाद आपको एक पैकेट मिल रहा है, मतलब सर्वर को एक पैकेट मिल रहा है फ्रॉम द क्लाइंट, कि प्रीवियस जो पहले वाले दो चंक्स थे वो रिसीव हो गए। फिर एक पैकेट के बाद फिर से दो चंक्स जा रहे हैं फाइल के, फिर एक पैकेट रिसीव हो रहा है फ्रॉम द क्लाइंट साइड, कि जो सर्वर ने प्रीवियस चंक्स भेजे थे वो रिसीव हो गए, एंड सो ऑन। तो ये जो फ्लो चलता ही रहेगा जब तक कि सारी पूरी जो फाइल का चंक है, लाइक सारी जो फाइल है वो शेयर नहीं हो जाएगी, विच इज वन फाइल, फिर शेयर नहीं हो जाएगी। देखिए, तो ये सारा एफटीपी डेटा है। सो फाइल काफी बड़ी है, विच इज 10 MB। तो 10 MB फाइल के कितने सारे पैकेट्स जनरेट हुए? ओके, अगर यहाँ पे बीच में पैकेट लॉस होता तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते? यूजिंग सीक्वेंस और एग पैकेट। ये अभी हम देखेंगे आगे। ओके, ये हम लोग टीसीपी में देखेंगे कैसे पैकेट लॉस को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, अभी के लिए यहाँ पर कोई पैकेट लॉस है नहीं वैसे। ठीक है, तो ये सारा डेटा ट्रांसमिट होता रहेगा जब तक कि वी रीच एट द एंड ऑफ द फाइल। और यहाँ पे मुझे मैसेज मिला कि सारा जो डेटा है ट्रांसफर कंप्लीटेड। और अगर हम देखेंगे तो ये सारा पोर्ट नंबर 20 पे हो रहा है। ओके, पोर्ट नंबर 20 पे सारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब देखिए, बट पोर्ट नंबर 20 पे एक्चुअली हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा पोर्ट यूज हो रहा है, पोर्ट नंबर 290622। मतलब कि जो आपका सर्वर है वो दूसरा पोर्ट यूज कर रहा है, क्योंकि पैसे मोड है। अगर यहाँ पे पैसे मोड नहीं होता तो पोर्ट नंबर 20 होता है इस जगह पर, जो सर्वर का पोर्ट होता है वो 20 होता। बट यहाँ पे पैसे मोड यूज हो रहा है तो पोर्ट नंबर दूसरा हो गया। ओके, इसका आप याद रखिएगा, इसलिए पोर्ट नंबर 20 नहीं है, क्योंकि दूसरा पोर्ट यूज हो रहा है, क्योंकि ये पैसे मोड है। अगर आपको देखना है कि ये 29022 कहाँ से आया, तो फिर से पीछे चलते हैं हम लोग, और जो हमने लाइक रिक्वेस्ट करी थी फॉर द फाइल विच इज हियर, प्लीज लॉग इन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे हैं बिफोर रिट्राइविंग द फाइल वी आर एंटरिंग, मतलब का जो जो सर्वर है वो एंटर कर रहा है इन द पैसे मोड। और इस बार जो आईपी है वो चेंज हो गई है। आईपी तो वही है, सॉरी, पोर्ट नंबर चेंज हो गया। ओके, पोर्ट नंबर हो गया 29022। पहले पोर्ट नंबर कुछ और था पैसे मोड के थ्रू, इस बार पोर्ट नंबर कुछ और है। अगर आपको फिर से कैलकुलेट करना है देन वी कैन सिंपली कैलकुलेट यूजिंग 113 मल्टीप्लाई बाई 256 प्लस 94, 2902। ओके, वही पोर्ट हमारा यूज हो रहा है, क्योंकि ये पैसे मोड है। अगर यही एक्टिव मोड होता तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 20 होता, जो कॉमन पोर्ट है एफटीपी का फॉर शेयरिंग द फाइल्स। बट यहाँ पे पैसे मोड के थ्रू काम हो रहा है, तो इसलिए पोर्ट नंबर यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, तो और यहाँ पे आपको लाइक मेंशन भी है यहाँ पे कि पैसे मोड है ये। अगर पैसे मोड नहीं होता तो आपको कुछ भी नहीं दिखता है यहाँ पे, मतलब कि बाई डिफॉल्ट एक्टिव हो जाए तो एक्टिव, तो डिफॉल्ट होता है ये, तो वो देखिएगा नहीं। बट अगर स्पेशली मेंशन है कि ये पैसिव है, तो पैसिव ही होगी अनटिल, और ये कब तक चलेगा? जब तक ये फाइल ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हो जाए। एंड देन लास्ट में वी हैव दिस वन फिनिक पैकेट्स हो रहे हैं। ओके, शेयर विच इज कनेक्शन टर्मिनेट हो रहा है। बीच में कुछ एरर पे एरर आते होंगे। दिस एरर कैन बी ऑफ, ओके, देखिए यहाँ पे वी हैव दिस एरर ऑफ जिसेट एग पैकेट का वो है, क्योंकि हो सकता है ये एरर इसलिए आ रहा हो क्योंकि कनेक्शन क्लोज हो गया हो, और जो क्लाइंट है वो फिर से पैकेट भेज रहा हो, एक पैकेट भेज रहा हो, तो हो सकता है कि अब कनेक्शन क्लोज हो गया, तो हाउ कुड द सर्वर कैन एक्सेप्ट एनी एक पैकेट। तो इसलिए दिस वन ऊप्स पैकेट्स एंड सो ऑन। तो ये सारे एरर पैकेट्स कुछ भी नहीं है, लाइक काफी कॉमन है, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि ये कनेक्शन एंड होने के टाइम पर आ रहे हैं, तो इतना कोई स्पेसिफिक यहाँ पर कुछ एनालाइज करने को है नहीं। ओके, तो इवन आई थिंक ये वाली जो फाइल है हम लोग यहाँ से भी फैच कर सकते हैं, दिस वन एफटीपी डेट।
देखिए यहाँ पे 10 MB फाइल आ गई जो हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें है क्या। तो आप उसको सेव कर लीजिए, सेव कर लीजिए इन सेव ऑन डेस्कटॉप। कैन ये दिस 10 MB जिप फाइल, हो सकता है मेलवेयर हो, मेलवेयर तो होगा नहीं, वैसे देख लेते हैं अनजिप करके। मतलब लाइक ऐसी ही फाइल है, प्रॉपर्टीज, द आर्काइव इज आइदर इज अननोन फॉर्मेट और डैमेज। देखिए डैमेज फाइल है, नो आर्काइव, डैमेज फाइल है, ओपन कर सकते हैं? नहीं। देखिए फाइल डैमेज है, मतलब ओपन तो नहीं हो सकती है। और क्या कर सकते हैं फिर, एक और वे है इसको फैच करने का फ्रॉम द वायरशार्क ट्रैफिक। आप किसी भी पैकेट को राइट क्लिक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए टीसीपी स्ट्रीम को। अभी सारा आपका डेटा ही तो है, ओके आपका डेटा है बट यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि चंक्स में जा रहा है डेटा। तो आपको क्या करना है, पहले वेट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये काउंटिंग चल रही है, इसका मतलब ये है कि इतने सारे पैकेट्स सर्वर भेजता जा रहा है, भेजता जा रहा है टू द क्लाइंट। ओके, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रॉ फॉर्मेट, रॉ फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के बाद हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग सेव एज। तो ये ऑप्शन एचटीटीपी में होता है बट एफटीपी में वो भी होता है शायद, बट अभी ये टाइम लगाएगा। और लेट्स से लास्ट पैकेट लेते हैं, इस पे लेट्स सी दिस पैकेट, इसी को भी उठा लेते हैं, राइट क्लिक एंड फॉलो। नहीं, ये भी काउंटिंग चलेगी, मतलब कि ये पूरे नंबर ऑफ सर्वर के पैकेट्स को पहले काउंट करेगा कितने ट्रांसमिट हो रहे हैं। एक बार ये सारी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ऑप्शन मिलता है एंटायर कॉन्वर्जेशन का, इसको आपको क्लिक करना है। और इसको आपको एक वन साइड का ऑप्शन होता है फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, उसको क्लिक करना है आपको। एंड देन इसको आपको रॉ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तब बस ये रॉ फॉर्मेट में हो जाएगा कन्वर्ट, फिर आप उसको सेव एज कर सकते हैं। तो ये दूसरा वे है अपनी फाइल को फैच करने का फ्रॉम द वायरशार्क ट्रैफिक। पहला वे तो है कि आप एक्सपोर्ट कर लीजिए ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फाइल एंड फ्रॉम हियर एक्सपोर्ट। अगर अगर यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेट्स से वी हैव दिस एफटीपी डेटा, अब ये एफटीपी डेटा लाइक हमने सेव किया बट वर्क नहीं कर रहा, सो इन दैट केस वी कैन फैच फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम द पैकेट लिस्ट या पैकेट्स। सेम ऐसा हम एचटीटीपी के साथ कर सकते हैं, अगर कोई एचटीटीपी का डेटा है, कोई ईएक्सी फाइल है या फिर कोई इमेज है या फिर कोई ऐसे कोई भी फाइल है, तो अगर उसको वायरशार्क रिकॉग्नाइज कर पा रहा है तो वो एफटीपी के पैनल में डाल देगा कि ये सारी फाइल्स है और इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर कोई ऐसी फाइल है जो वायरशार्क आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि ये किस टाइप की फाइल है, तो आप डायरेक्ट उसको फैच कर सकते हैं फ्रॉम द पैकेट लिस्ट, मतलब कि यहाँ से आप फैच कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे कैसे फैच करना है, ओके वंस वी विल डिस्कस द एचटीटीपी प्रोटोकॉल। अभी के लिए इसको क्लोज करते हैं। ओके सो दो वेज है, लाइक इधर वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हियर और वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स। इज इट क्लियर, कोई क्वेश्चन नो मैडम। फ्रॉम ये हाँ, ये मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा थोड़ा क्योंकि थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये। ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको? फिर तो आपको टीसीपी और भी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि ये सबसे सिंपल एनालिसिस है एफटीपी का। एक तो ये सारा प्लेन है, लाइक कोई इंक्रिप्शन नहीं है, तो इसलिए पहले बात ये सिंपल है। सेकेंडली एफटीपी का है तो एफटीपी का तो इस लाइक सिंपल ही होता है। मेन आपको फिर तो दिक्कत आएगी टीसीपी में, टीसीपी में भी आपको दिक्कत आएगी एचटीटीपीएस में, जब हम लोग एचटीटीपीएस का एनालाइज करेंगे क्योंकि वो सारा इंक्रिप्टेड होता है। तो आपको इंक्रिप्शन के ऊपर रखकर ही सारा एनालाइज करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारा क्लियर हो ही जाए एट द हम्म। एंड, ये इतना इतना लाइक हार्ड नहीं है। कोई ये मैडम, ये फाइल आप शेयर करना, तो मैं इस पे भी काम कर रहा हाँ ये हूँ। मैं फाइल आपको शेयर करती मीन्स और मेरे पास भी एफटीपी सर्वर है दूसरी ब्रांच में, तो उसको भी चेक करूंगा पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम सर्वर कनेक्ट ही होता है हमारा।
हाँ, आप वो भी लाइक लाइव कनेक्शन पे भी एनालाइज कर सकते हैं, लाइक लाइव ट्रैफिक। हाँ ओके, सो रेस्ट हम कल कंटिन्यू करते हैं। कल वी विल डिस्कस अबाउट डीएचसीपी प्रोटोकॉल, और देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो और फिर प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे। ओके, सो कोई क्वेश्चन? नहीं मैडम। मेक श्योर कि एक बार आप सारा रिवीजन ले लें, क्योंकि लाइक आफ्टर हाँ डीएचसीपी और ईमेल के बाद हम लोग सीधे टीसीपी पर ही एनालाइज करेंगे। टीसीपी के लिए आपको पहले वाला सारा पार्ट आना चाहिए, ठीक है? तभी आप थोड़ा टीसीपी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि वो मेन प्रोटोकॉल। ओके, तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको ब्रेक चाहिए तो आप ब्रेक भी ले सकते हैं इन द मिडिल, और या फिर आप सैटरडे हाँ। संडे में भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आप लाइक जैसा भी आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, बट मेक श्योर बिफोर टीसीपी रिवाइज एवरीथिंग। ओके, ओके ओके श्योर। सो रेस्ट वी विल कंटिन्यू टू वर्क। थैंक यू। ओके ओके।